across the country, whether the government has enacted stringent laws to control air pollution levels and penalize or punish violators of the said rules. And, Honorable Speaker sir, I would also like to ask whether the government purposes to provide any uniform limits across the country as per standards of the World Health Organization and it. So, the details thereof along with steps taken by the government to control and minimize air pollution in the country. धन्यवाद. भूपेंद्र यादव जी उत्तर दीजिए. Statement referred to in reply to para section A to C for regrading policy on air pollution raised by Shri Bhimrao Basantrao Patil, Honorable Member of Parliament. Air quality regulation and actions for abatement of air pollution and undertaken under various provisions of Air Act 1981 and Environment Act 1986. National Clean Air Launch Program by PM10, PM2.5 by concentration by 2024. Further, the government has enacted the Commission of Equality Management in National Capital Region of Adjoining Areas Act 2021 for constituting commissions for air quality management and in National Capital Region and adjoining areas for better coordination, research, identification, resolution of problems related to air pollution, NCR, National Capital Region areas. प्रश्न 3 भारतीबेन शियल जी प्रश्न पूछिए. Honorable Speaker sir, will the Minister of Environment, Forest and Climate Change be pleased to state whether the extent of pollution has increased in Delhi and adjoining areas in November 2021? If so, whether the government has examined the causes? If so, the details thereof, the steps taken by the Union Government and NCT of Delhi to check the alarming pollution of NCR and Delhi. If so, the details thereof, whether the Honorable Supreme Court has issued any directions in this
सिंधिया जी, उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न के संदर्भ के साथ नहीं है क्योंकि प्रश्न एयर बबल्स पर है, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पर है। लेकिन मैं अपनी तरफ से माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि आप जरूर आकर मुझसे मिले और अमरावती की एक बहुत प्राथमिकता केवल महाराष्ट्र में नहीं है लेकिन पूरे देश में है। और अमरावती की ये जो भी आवागमन की सुविधा हम लोग कर पाए, आप जरूर मेरे पास आकर मिले। हम दोनों चर्चा करके देख लेंगे कि भविष्य का क्या रास्ता हमें अपनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न 5, श्री रमेश पिदुरी जी, प्रश्न पूछिए। Honorable Speaker, sir, will the Minister of Education be pleased to state whether the government has taken any steps for effective implementation for National Education Policy 2020? If so, the details thereof. Whether any special guidelines, directions have been issued to state union territories regarding the policy, and if so, the details thereof. Thank you. श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर दीजिए। As per the National Education Policy 2020, implementation of policy requires multiple initiatives as well as actions, which will be taken by different regulatory bodies in a synchronized and systematic manner. The policy provides different timelines and guidelines and methodology for its implementation. Accordingly, Ministry has sent to all its implementing agencies, regulatory bodies, state or union territory governments, other stakeholder ministries and departments for taking steps of implementation of NEP 2020 and in pursuance of the goals and objectives of NEP 2020 to assist states, union territories and other organizations in this task. Thank you. प्रश्न 6, श्री मणिकम टैगोर जी, प्रश्न पूछिए। क्या योजना मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या ये सच है कि सरकार ने देश में अवसंरचना से संबंधित परियोजना को गति देने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक एक परियोजना का आरंभ किया था? क्या यह भी सच है कि देश में वर्तमान में चल रही अवसंरचना संबंधी परियोजनाएं रुकी हुई है क्योंकि सरकार द्वारा सक्रिय कदम न उठाए जाने के कारण उनकी लागत में वृद्धि हो गई है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही लंबित परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और रुकी हुई परियोजना के संबंध में आयोजित की गई समीक्षा बैठकों में प्राप्त प्रतिक्रिया क्या है और सरकार द्वारा समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? धन्यवाद। श्री इंद्रजीत सिंह जी, उत्तर दीजिए। जी हाँ, अधिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 21 अक्टूबर 2021 को हुई अपनी बैठक में विभिन्न अधिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान तैयार करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। धन्यवाद। We end with the question now. Now let us see the presentation of some important aspects of budget by the finance minister and the other discussion and comments on that by the other ministers. निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, the preparation of this budget was undertaken in circumstances like never before. Many of calamities that have affected our country or a region within a country. But what we have endured with COVID-19 to 2020 is too generous. When I presented the budget 2020-2021, we could not have imagined
packages 2 and 3, total financial impact of all the Atmanirbhar packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be around 27.1 lakh crores, which amount to more than 30% of our GDP. Speaker sir, as the government, we kept a watch on situation and are proactive in our responses. The government led by the Prime Minister sir stretched its resources to the poorest, for the most vulnerable section of our society, the Dalits, the tribals, the migrant workers and our children. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana. The 3 Atmanirbhar packages and announcements made later were expired mini budgets in themselves. The Atmanirbhar packages of our face of structural reforms, redefinition of MSMEs, commercialization of privatization of public sector undertakings, one nation, one ration card production and incentive schemes are some of the notable reforms carried out during this period. Faceless income tax assessment, DTT and financial inclusion are the others. I thank Honorable Prime Minister sir for his guidance for a better serving India. Thank you. Now I would like to felicitate our Vice Principal sir with a bouquet of flowers. श्री अरविंद केजरीवाल जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं वित्त मंत्री को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतने मुश्किल समय में भी इतना शानदार और बैलेंस बजट पास किया, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल लोगों के काम रुके थे, दुकानें बंद हो गई थी, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, जिससे सरकार का रेवेन्यू टैक्स भी रुक गया था और इन सब का जिम्मेदार सरकार होने के कारण हमें जगह जगह खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ी और इस वजह से सरकार के खर्चे बढ़ गए और आय बिल्कुल खत्म हो गई। परंतु इन सब के बावजूद इतना अच्छा बजट पास करने के लिए मैं उनका आभारी रहूंगा। तब कई लोग कहते थे और कई पत्रकार भी कहते थे कि अब बिजली की सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी, अब पानी की सब्सिडी बंद करनी पड़ेगी, परंतु पूरा पिछले साल बिजली भी फ्री रही, पानी भी फ्री रहा, अस्पताल भी फ्री रहे, महिलाओं के लिए बसें भी फ्री रही। इतने कठिन समय में भी जनता को यह सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। इस बजट को देशभक्ति बजट भी कहा गया है। इस बजट में यह कहा गया है कि हम पूरी दिल्ली भर में 500 तिरंगे लहराएंगे, परंतु मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब से यह ऐलान किया गया है तब से बीजेपी और कांग्रेस वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसमें विरोध करने वाली क्या बात है? अच्छा कदम है, साथ देना चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, देशभक्ति के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश तो हमारा सबका है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, आम आदमी पार्टी का है, हम सबका है। केंद्र सरकार ने जब जब अच्छे कदम लिए हैं तब तक हमने उनका दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग किया है। प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छ भारत अभियान का ऐलान किया था तब हम खुद एक बस्ती में जाके झाड़ू लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने जब योगा का ऐलान किया था तब हम खुद इंडिया गेट जाके योगा किए थे। हमारा जब देश आता तो हमारे लिए कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, हमारे लिए हमारा देश है, भारत माता। तो जब हमने कहा कि हम तिरंगे फहराएंगे तो इसमें विरोध क्यों हुआ? कहते हैं तिरंगे नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। हमारा देश का तिरंगा अब भारत में नहीं फहराएगा तो क्या पाकिस्तान में फहराएगा? हमारे देश का तिरंगा अब दिल्ली में नहीं फहराएगा तो क्या इस्लामाबाद में फहराएगा? प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ लोकसभा। देशभक्ति के बीच राजनीति न लाए। जय हिंद, जय भारत। अखिलेश यादव जी, मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी पहली बार बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा बता रहे थे कि जो
लीजिए। अनुप्रिया पटेल जी। माननीय अध्यक्ष जी, हम छोटे गण के हैं, हमारा नंबर बाद में आता है, लेकिन बड़े गण के लोगों को इस तरीके से हमारा समय व्यर्थ करने का जरा भी हक नहीं है। आप हमारा समय मत खाइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी ने आर्टिकल 376 को खत्म करने का जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसके समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। जो संकल्प प्रस्तुत किया है और जो साथ में दो महत्वपूर्ण भी बदलाव लेकर आए हैं, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक और जम्मू और कश्मीर राज्य आरक्षण विधेयक, वे दोनों ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन संकल्प और विधेयक पे आने से पहले मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज इस सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री मनीष तिवारी जी ने जिस सर्वनाश तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्रेय को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जूनागढ़ और हैदराबाद की रियासतों से भारत के विलय के श्रेय को सरदार वल्लभ भाई पटेल से छीनने की कोशिश की, मैं अपनी पार्टी की ओर से उसकी घोर निंदा करती हूँ। धन्यवाद। चमियान शेरिंग नमग्याल जी। सभापति महोदय, आज भारत के इतिहास में वो दिन है जो गलतियां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में कांग्रेसों ने किया। उस गलती का आज एक रेक्टिफिकेशन होने जा रहा है और हम सब इसका स्वागत करते हैं। अध्यक्ष जी, मैं पूरी बातों को अच्छी तरह से सुन रहा था और बहुत लोगों ने, मुझे खुशी हुई कि बहुत लोगों ने लद्दाख, लेह और कारगिल का जिक्र किया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो लोग लद्दाख को जानते हैं? लद्दाख में बीते 71 साल 7 मीटर लद्दाख को बिल्कुल अपनाया गया, बिल्कुल फेंक के रखा हुआ है। ऐसे वक्तव्य देने वाले क्या लद्दाख को समझते हैं? लद्दाख की Now I would like to felicitate our principal sir with a bouquet of flowers. क्या लद्दाख की विशेष संस्कृति को जानते हैं? क्या लद्दाख का रहन सहन, खान पान, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का जो दुर्गम क्षेत्र है, क्या वो जानते हैं या फिर खाली किताबें पढ़ के बोल रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, लद्दाख ने पिछले 71 इयर्स यूटी के लिए प्रयास किया है। हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते थे, लेकिन जिनकी सरकार थी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, हमें जानने की कोशिश तक नहीं की और आज तक हमारा कश्मीर के नीचे हमारा डेवलपमेंट, हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन, हमारी भाषा अगर लुप्त हुआ है, ये तो सिर्फ आर्टिकल 370 और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। अमित शाह जी। हमें कोई भी कानून बनाने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। सारे सदन के उपयोग के लिए आर्टिकल 370 जो है, धारा 3 को पढ़ना चाहते हैं, सब ध्यान से सुनिए। Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this article shall cease to be operative or shall be operative only with such exceptions and modifications and from such date as we may specify। अब ये होता है कि धारा 370 का उपयोग कर राष्ट्रपति महोदय 370 को सीज कर सकते हैं, संपूर्ण तरीके से सीज कर सकते हैं। महोदय, ये नोटिफिकेशन मगर उसमें राइटर डाला गया, प्रोवाइडेड दैट द रिकमेंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट रेफर टू इन क्लॉज शैल बी नेसेसरी बिफोर द प्रेसिडेंट इश्यू सच एज नोटिफिकेशन। महोदय, ये नोटिफिकेशन निकल
स्टेट को विशेष अधिकार देती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप धारा 370 को समाप्त करेंगे कि सोच रहे हैं, तो आप सुन ले कि धारा 370 हटाने का आपको कोई हक नहीं है। इससे दूसरे स्टेट को आप क्या संदेश भेजते हो? धन्यवाद। Sometimes in special situations of some important ministers or the chief ministers of the states also get their voice in the parliament. Now let's watch it as the speech of Shri Yogi Adityanath ji, the chief minister of Uttar Pradesh and some other ministers. योगी आदित्यनाथ जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। जो आज यहाँ पर सदन की मर्यादा का पालन न करके जो आज बातें हो रही है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अयोध्या में 3 तरह की परिक्रमा होती है, पंचकोशी, 14 कोशी और 84 कोशी। और महोदय, उसी परंपरा के अनुसार देश के 10,000 संतों ने 84 कोशी परिक्रमा हेतु इस यात्रा का कार्यक्रम तय किया था। महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अयोध्या में से राम जन्मभूमि, जिस पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने खंडपीठ के निर्णय के बाद आदेश दिया था, उससे 25 से 30 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद के मुखौड़ा नामक स्थान, जहाँ पर महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, उस स्थान से इस परिक्रमा की प्रारंभ हुई थी। धन्यवाद। हुकुमदेव जी। महोदय, मैं अपने बोल से पहले अपने दल के नेताओं को धन्यवाद करना चाहता हूं और प्रकट करना चाहता हूं। उन्हें समान चर्चा में बजट में मुझे बोलने का प्रथम अवसर दिया है। शहर से ही मैं गांव का किसान हूं, गांव में पढ़ा हुआ और बड़ा पड़ा, किसी तरह से राजनीति के धारा में चलत चलत यहाँ तक आए पानी, लेकिन जब कभी खड़ा होता हूँ तो मेरी नजर वहीं रहती है। चौधरी चरण सिंह जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी मुझे एक बार कहा था कि हुकुमचंद, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन दिन में एक बार मेरी नजर अपने गांव पे चली जाती है। वही कच्ची दीवार, वही कच्ची कुआ, वही गाय, वही बकरी, वही ज्वार, वही बाजरा। तो मैं जहाँ से पैदा हुआ हूँ वही की संस्कृति लेकर आया हूँ। इन्हें तो इन संस्कृति के बारे में भी पता नहीं है। मैंने बकरी की गिनती की, मैंने गाय की गिनती की, अब संजोग से लोकसभा में आया हूँ तो मैं आंकड़ों की गिनती करता हूँ। अब मेरे जैसा आदमी की बकरी गिनूं की, भैंस गिनूं की, डेफिशिएंट गिनूं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि आगे दिन पीछे गए गुरु से किया नहीं, अब पछतावा होता जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस समय गांव को देखना था, किसान को देखना था, मजदूर को देखना था, गरीब को देखना था, तब उनकी ध्यान तो कहीं और चली गई थी। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को। कुछ योजना ऐसी आई है जिससे सबका विकास हुआ है। धन्यवाद। When the opposition strongly feels that the government is not working as per the expectations of people and people are also not happy with the government, the opposition requests a no confidence motion in the parliament. In such case, the ruling party has to prove its majority in the parliament. Now let's have some glimpse of the no confidence motion that INC and its alliance demanded from the Modi government to prove its majority. श्री राहुल गांधी जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपको मेरे सादर प्रणाम। जो लोग शहीद हुए हैं, इन्होंने तो इसकी कोई श्रद्धांजलि नहीं दिया। आज नहीं, कल भी
और लिख लीजिए, मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए अलग अलग गाली दे है, और मेरे अंदर इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस है, और इसी भावना ने इस पूरे देश को बनाया है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। और यह भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। आपके अंदर में जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको एक दिन कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। ये सार्वजनिक चर्चा होती है कि हम सरकारों को काम नहीं करने देते, हम लोगों की बातें नहीं सुनते। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि देखो, दिखा दी हमने अपनी ताकत, भले ही हम कम हैं, लेकिन काम चल रहा है। और एक बात जो आप सभी के समक्ष उठ रही होगी, वो बात यह है कि यह सदन चलने क्यों नहीं दिया जाता। यह सदन इसलिए नहीं चलने दिया जाता कि आप उसका विरोध कर सके, यह इसलिए नहीं चलने दिया जाता क्योंकि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इसी के कारण नहीं चलने दिया जाता। विपक्ष में भी ताकतवर और अच्छे नेता है, इसलिए हमें इसका निर्माण करना जरूरी है। अब इनका विरोध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि सदन नहीं चलना चाहिए, पर इन्हें यह बात का बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि अगर सदन चलेगा तो इन्हें बोलने का मौका मिलेगा, अगर सदन चलेगा तो इन्हें बात रखने का मौका मिलेगा, अगर इनकी बात रखी जाएगी तो इनकी जयकार होगी। और हमारा क्या होगा, हम क्या करेंगे? यही बात की चिंता है इन लोगों को, ये डर चुके हैं इस बात से। इन लोगों में इस देश के प्रति जरा भी प्यार नहीं है, यह तो सिर्फ सत्ता का लालच है। आप लोगों को इतना भी नहीं है कि हम अपने देश की मर्यादा का पालन करते हुए सही चीजें बोले। नहीं, सरकार को रोकने की बात तो कोने पर ही रह गई, परंतु आपने तो ये भी ठान लिया कि सामने की पार्टी में कोई भी ताकतवर नहीं बनना चाहिए। इसके लिए सदन शुरू होने से पहले ही मुझे पता चल गया था कि कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे सदन में। अब मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। जाने क्यों ऐसा लगता है कि हम अपने देश की इमेज बनाने के लिए एक खाली कटोरा लेकर निकले हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये तो स्वयं राहुल गांधी जी की दादी ने कहा। इंदिरा गांधी जी ने यह स्वयं उनके इंदिरा पुस्तकालय के उद्घाटन के भाषण में कहा था। और अब जहाँ तक रही बात आपने मेरे अपमान किया, उसका भाषण मैंने पूरी तरह सुना है। इसमें बिल्कुल भी अज्ञातवास नहीं था। ये ना तो सच्चा देश प्रेम है और ना ही झूठा आत्मविश्वास। यह सिर्फ एक अहंकार है। मोदी हटाओ का अहंकार है, राहुल गांधी सर्वश्रेष्ठ है, इसका अहंकार है। मोदी लोगों की अच्छाई के लिए था, लोगों की अच्छाई के लिए है, और लोगों की अच्छाई के लिए ही रहे। धन्यवाद। I hope you all have enjoyed it and also learned some lessons. Lastly, I would like to say the objective of performing the mock parliamentary activity to make the students understand the process, to consider the publications, and also to train the students the technique of group discussion. Now I would like to call Principal Sir for a speech. Good morning to all of you. We have a very interactive session. I was downstairs, board exam is going on downstairs, and was such a good, these speeches were coming which tempted me to come over here. I regret that I was late. I could not hear the other speakers. So it was the mock parliament session, and some of these speakers, they have spoken very well, and they were looking like our honorable Prime Minister or
Modi ji or Amit Shah or so and so, and so good costumes also. But one thing I noticed that the majority of the speakers, they were reading. That should be avoided. Except our Honorable Prime Minister, majority of them, they have tried to read from the papers. And when you are going to speak, let it be the morning assembly or let it be any type of program, reading from a paper doesn't sound right. It doesn't give a good impact. It also not able to control your in a good way your body language also. So as far as possible, you have 1 minute, 2 minutes, 3 minutes speeches. That should be prepared well, and the paper reading should be avoided. I am again repeating, whenever you have any public program, whenever you are speaking anything publicly, there are certain information where you require a paper. For example, you are reading news or something like this, you may require a paper over there. But the other parts where you are going to speak, it should be without paper. And once you are speaking without paper, definitely it is going to bring a good confidence in you. So see to it that you are not using any paper. Well, this is the school where we are teaching you in the age group of 13, 14, 15 years or 12 to 15 years of the age group children. After 10 years, 20 years, 30 years, some of them will be in the good position, not some, majority of you will be in the good positions, and some of you may also choose a career into the politics. In fact, the career in the politics is very rewarding, and the career in the politics is needed in our country. Because majority of the politicians which we are seeing, they are coming from their families, their parents, their forefathers went to the politics, so they have